السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome my dear sisters. Alhamdulillah. Tuesday evening. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Razitu billahi rabba wa bil islami deena wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Once again, welcome my dear sisters. Which ayat are we studying today, Chandanti? 40. No, we will study from ayat 43. Sorry. Yes, Yes. 43 onwards. 43 onwards, inshallah. So over to Suraya for the tilawat. جی We have Abdur Rahman with us, and Abdur Rahman had recited this tilawat for us. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Abdur Rahman. Hafiz Abdur Rahman Sahib. Alhamdulillah. सब मिलकर पढ़ेंगे. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Ameen. Sadaqallahul Azim. Jazakallahu khair, Abdur Rahman. So ayat number 43. Shamim, kindly share the screen. wa aqimus salat. वो उर्दू में करते हैं पहले वो और अकीमू तुम सब कायम करो. ये फिर से ऑर्डर है, अल्लाह ताला का कमांड है, हुक्म है. व अकीमू और तुम सब कायम करो. क्या? अस्सलात नमाज. हम नमाज कहते हैं अरबिक में अस्सलात. वो और क्या करो? आतू और अता करो, अदा करो. अज़्ज़कात ज़कात यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो. वो और थर्ड ऑर्डर वर्कऊ और तुम सब रुकू करो. रुकू करते हम लोग नमाज में, तुम सब रुकू करो. मअर राकिईन
मअ साथ, अर्राकिईन रुकू करने वालों के साथ, यानी बाजमात नमाज अदा करो। ठीक है, इसको इंग्लिश में करते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 143, व अकीमुस्सलात, and all of you establish the prayer, establish the prayer, wa and atu zakat, and give zakat, give zakat, wa and irqa'u, and bow down, ma'ar raki'in, with those who bow down. This is not prostration, this is bowing down in ruku. So as you all remember, we were studying about whom? About the Bani Israel. याद है आप लोग को किनके बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, कल की क्लास में? अबाउट बनी इसराइल. सो बनी इसराइल कौन थे? याद है आप लोग को? चांद आंटी, याकूब अलैहिस्सलाम को ये टाइटल दिया गया था, उनके 12 बेटे थे, एंड दे आर कॉल्ड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, एंड इसमें 4000 से ज्यादा नबी आए थे. यस यस, जज़ाकल्लाह खैरा. तो बनी इसराइल के बारे में हम पढ़ रहे हैं. अल्लाह ताला अब कौन से बनी इसराइल से बात कर रहे हैं? वही बनी इसराइल जिनकी जनरेशंस मदीना में प्रेजेंट थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, माइग्रेट करके मदीना आए. तो कल की क्लास में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया इनको कि तुम सब ईमान लाओ ए बनी इसराइल, तुम्हारी किताबों में अल्लाह ने ये फरमा दिया है और तुम पहले न बन जाना इनकार करने वाले. अव्वल काफिरिन बिही, सो डोंट बी द फर्स्ट वंस टू रिजेक्ट, इजंट इट. और क्या पढ़े थे? सच और झूठ को मिक्स ना करो. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर वन स्टोरी, एक सहाबी के बारे में, और देन वी विल कम टू दिस आयत 43. सहाबी का नाम था सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु. Now we will see what happened. सलमान अल फारसी was a Persian, और वो एक यहूद ज्यू के यहाँ स्लेव बनाकर रखे गए थे मदीना में. सो मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए तो सलमान अल फारसी जो थे उनको ये पता चला कि अल्लाह के आखिरी रसूल है. तो उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, वो जानना चाहते थे कि क्या सच में ये अल्लाह के रसूल है. जो आया था ना कि हक को पहचानो और हक और बातिल को मिक्स ना करो. सो ही वांटेड टू नो द ट्रुथ, and there's nothing wrong in finding out what is truth and what is false. We have to find out. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खूब दीन की किताबें पढ़ी हुई थी, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, इसीलिए उनको पता था कि एक रसूल के अंदर क्या क्वालिटीज होती है डिवाइन, अल्लाह की तरफ से उनको क्या स्पेशल एनलाइटनमेंट होती है. तो वो गए, उन्होंने क्या किए, कुछ खजूरें कलेक्ट की, डेट्स. ही कलेक्टेड सम डेट्स and he went to the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he presented it saying कि this is a charity for you, ये आपके लिए सदका है जो मैंने लाया है. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सदका ले लिया और अपने कंपेनियंस सहाबाई कराम को पेश किया. और सलमान अल फारसी वाज ऑब्जर्विंग वेरी कीनली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक भी खजूर नहीं खाई, सारी खजूरें अपने कंपेनियंस को खिला दी. देन ही नोटेड पॉइंट नंबर 1 कि प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कभी भी सदका कबूल नहीं करते, सदके में से नहीं खाते, ना इस्तेमाल करते. सो he noted that this is one point is right, tick. Then he went home और he brought more dates, और खजूरें लेकर आए कलेक्ट करके, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए, गिफ्ट किए. एंड ही सेड कि ओ मैसेंजर,
I have noted that you did not eat from the charity, from the sadaqah. So now this is a gift for you. I want to honor you. मैं आपको आपकी इज्जत करता हूँ और आपके लिए अभी क्या लाया हूँ, तोहफा लाया हूँ, गिफ्ट लाया हूँ. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा कबूल किया और उसमें से खजूरें खुद भी खाई और सहाबा इकराम ने भी खाई. Then he noted point number 2, that yes, he knew that the prophets eat from the gifts but not from the charity. फिर he was waiting for the third point to be cleared, and one day he got a chance when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in Jannatul Baqi, in the graveyard, and he wanted to see, Salman Al-Farsi wanted to see a sign on his back, Mohre Nabuwat, on the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If he was a prophet, then he would see a seal upon his back. So when he went behind the back of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got to know he wants to see the seal, Mohre Nabuwat. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allowed his garment, his upper garment, the chadar, to fall, and then Salman Al-Farsi, he saw the seal, the Mohre Nabuwat, on the back of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was so happy. Tears rolled down his cheeks, and he started kissing and touching the seal on the back of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also hugged him. And this is how Salman Al-Farsi, he accepted Islam. Alhamdulillah. So even though he was a Christian earlier, and then he was working as a slave at a Jew's place, but when he saw the truth and he accepted the truth, Alhamdulillah. फिर क्या हुआ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी के कबीले से कहा कि तुम सब सलमान फारसी को कैसा देखते हो, तो कहते कि हम तो इसको सच्चा मानते हैं, ये हमारे अंदर बीच में बहुत ही पढ़ा लिखा ऑनरेबल जवान है. तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान फारसी इस्लाम कबूल कर चुका है, अब तुम लोग क्या करोगे, क्या तुम सब भी इस्लाम कबूल करोगे? तो वो लोग सब पलट गए, नहीं, हम तो अब इसकी बात नहीं मानेंगे, ये तो झूठा है. किस तरह वो लोग पलट गए और वो ईमान नहीं लाए. तो ये था सच और सच मानना जो सलमान फारसी ने किया, और जो उनके कबीले ने किया वो था झूठ और सच को मिक्स कर देना. पहले कहते कि ये हमारा सच्चा आदमी है, और जब कहा गया कि ईमान ले आओ तो कहते कि ये तो झूठा है, हम इसकी बात नहीं मानेंगे. अस्तगफिरुल्लाह. So why did I share this story with you? कि ये नहीं कि कोई भी ईमान नहीं लाया था, ऐसे थे कुछ जो ज्यूज और क्रिश्चियंस में से भी ईमान लाए थे. So what do we learn from this story? शमीम? बाजी हक पता चल जाए तो फौरन मान लेना. Yes, और हक को पता करने की कोशिश भी करनी चाहिए, isn't it? ये नहीं कि yes, ये नहीं कि अंजुम बाजी ने पढ़ा दिया तो ये सच है, अभी हमने इसको ब्लाइंड फोल्डेड मान लिया. नहीं, सरीना बाजी ने पढ़ा दिया तो हमने मान लिया, नहीं. आपको खुद भी इल्म को तलाश करना है. You have to always be in search of the truth, because हम सब इंसान हैं, we can even falter. So हर एक को अपने लिए इल्म को हासिल करना है, हक की तलाश में रहना है, इंशाल्लाह. ओके. और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने सीखा था कि जो कुछ हम पढ़ रहे इल्म को छुपा कर नहीं रखेंगे, उसे लोगों तक पहुंचाएंगे. क्या किसी ने इस पर अमल किया? कल जो हमने पढ़े थे, किसी ने इस पर अमल किया? बताइए, शेयर योर एक्सपीरियंस. अगर नहीं किया है
तो अभी कर लेंगे इंशाल्लाह। जो भी हम सीख रहे हैं, एक आयत, एक हदीस, एक अच्छी सी बात, एक स्टोरी किसी के साथ शेयर कर लीजिए। ओके, चले कमिंग बैक टू आयत 43। तो अब अल्लाह ताला इन बनी इसराइल को हुक्म दे रहे हैं कि ए बनी इसराइल, तुम अब क्या करो, इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। और इस्लाम का बेसिक फाउंडेशन टेनेंट क्या है? नमाज। तो तुम सब क्या करो, नमाज कायम करो। व्हाट इज नमाज कायम करना? अकीमू में क्या वर्ड है? कायम करना। व्हाट इज कायम? टू इस्टेब्लिश, टू स्टैंड फॉर। और कैसे हम स्टैंड करते हैं नमाज को? उसके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। और तरीका किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो नमाज हमको कितनी बार फर्ज है एक दिन में? 5 टाइम्स। प्रेयर इज ऑब्लिगेटरी। और उसकी जो कंडीशंस है, इजंट इट? नमाज के क्या क्या कंडीशंस है बताइए। वी विल कम टू द अहादीस। सबसे पहले हाँ, वजू करना, सबसे पहले वजू करना। यस, पाकी वजू। ओके, देन किबला रुख होना कंपलसरी। यस, वक्त, नमाज का वक्त हो। जगह भी जगह पाक हो बाजी, और हम भी पाक हो। वेरी गुड, जगह भी पाक हो, हम भी पाक हो, यानी क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। देन अव्वल वक्त पर पढ़ना, अव्वल वक्त पर पढ़ना। ओके, और तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इन लोगों से कहा कि नमाज कायम करो, नंबर 1। नंबर 2, आतु ज़कात, अता करो ज़कात। व्हाट इज ज़कात? नमाज किसके लिए पढ़ते हम? अल्लाह के लिए, के है बाद ना? वो क्या है? अल्लाह की इबादत है। तो हमने सूरत अल फातिहा में अल्लाह से क्या प्रॉमिस किया कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह सिर्फ हम तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। तो नमाज ये एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ने हमारे लिए चूज की है। इबादत मुझे अल्लाह की करनी है तो उसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगी। मैं ये देखूंगी कि अल्लाह को कैसी इबादत पसंद है। तो अल्लाह को ये पसंद है कि मैं नमाज पढ़ूं। कैसे पढ़ूं? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। अगर मैं ये सोचूं कि अल्लाह मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है, आज है ना रात भर मैं सिर्फ एक पैर पे खड़ी हो जाऊं, एक टांग पे खड़ी हो जाऊं, आई विल स्टैंड ऑन ओनली वन फीट फॉर द होल नाइट बिकॉज आई लव यू अल्लाह, आई वांट टू वर्शिप यू। Is the worship accepted? No. no, Why? it's not proper standing, na? We are supposed to stand with both the legs. It is that सुन्नत नहीं जैसे है। अल्लाह, हाँ, जैसे अल्लाह को पसंद है वैसी ही इबादत करनी है। जैसे अल्लाह ने फरमा दिया तो ही वो कबूल है, वरना वो काबिल कबूल नहीं है। तो बिकॉज ये अल्लाह का हक है हम पर। देन सेकेंड है वो आतु ज़कात। अभी ज़कात जो हम देते हैं, क्या ज़कात रोज देनी होती है? दिन में नहीं, 5 बार देनी होती है? सिर्फ नहीं रमजान के नहीं। महीने में। In a Now year, this is a misconception, शमीम। ऐसा नहीं है कि रमजान के महीने में ज़कात देनी है। एक साल, पूरे एक साल का जितना भी हमारा हम कैलकुलेशन कर ले, उसमें से कितना परसेंट होती है ज़कात? 2.5% ओनली। 2.5% मिनिमम। minimum. दैट इज, यस, मिनिमम। यानी अगर आपके पास 100 रुपए है तो उसमें से सिर्फ 2 रुपीज एंड 50 पैसा आपको जक़ात देनी है मिनिमम। उससे ज्यादा देंगे तो उतना ज्यादा अजर है इंशाल्लाह। तो जक़ात क्या हम अल्लाह को देते हैं? नो। जक़ात किसको देना है? जक़ात उसको देना है जिसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है। यू कैन कीप दिस चार्ट विथ यू, और इसको आप बाद में स्टडी कर सकते हो कि ज़कात किस किस को दे सकते हैं इंशाल्लाह। ये हमें सूरत अत-तौबा का रेफरेंस इसमें मिलता है। ओके, और थर्ड हुक्म क्या आया कि तुम सब रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ।
तो रुकू करो, रुकू इज अ पार्ट ऑफ नमाज, है ना, रुकू और सजदा दोनों ही है, और कयाम भी पार्ट ऑफ नमाज है। फिर यहाँ पे ऐसे क्यों आया कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ? बिकॉज जमात से हाँ पढ़ना सवाब है। हाँ, इसका मतलब है जमात से नमाज अदा करो, दैट इज राइट। बट देखिए, सजदा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, नमाज के अलावा भी सजदा हम कर सकते हैं। कुरान पढ़ते और बीच में सजदे की आयत आती है तो हम सजदा तिलावत भी करते हैं, कभी हम सजदा शुक्र भी करते हैं। लेकिन रुकू कोई ऐसे ही कभी खड़े खड़े रुकू करने में नहीं स्टैंड कर लेता। ओके, तो रुकू इज अ पार्ट ऑफ नमाज, और रुकू करने वालों के साथ यानी बा जमात। तो इस आयत में 3 ऑर्डर्स मिले। ये तीनों ऑर्डर्स बनी इसराइल को एनकरेज करने के लिए थे, बट नॉट ओनली बनी इसराइल, हम सबको अल्लाह ताला ने सेम ऑर्डर्स दिए, वेदर यू आर अ बनी इसराइल और यू आर अ बनी इस्माइल और यू आर अ बनी आदम, every Muslim has to obey all these conditions, commands of Allah Ta'ala. अब इसमें ये था कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि तुम जो भी इबादत करते थे, अब जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लीडर है, वो होंगे इमाम, और तुमको उनके पीछे खड़े होकर उनकी जमात में सहाबा इकराम के साथ खड़े होकर बा जमात नमाज अदा करनी है। दैट मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट द रिसालत, नबुव्वत ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो अल्लाह ने सारा कुछ अब कुरान में नाजिल फरमा दिए ऑर्डर्स, वो सब कुछ फॉलो करना होगा, बिकॉज अब यही अल्लाह का तरीका है, यही शरीयत है, दैट यू हैव टू फॉलो। गॉट इट? इसमें स्पेशली नमाज का जिक्र आया है। वी आर गोइंग टू क्विकली study some ahadith, important ahadith about namaz. Sana, kindly start sharing. What happened, Sana? It's taking a little time. I'm doing it, ma'am. 1 second. आप पढ़ाइए. Okay. तो नमाज हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या है। नमाज इज द की टू पैराडाइज, पढ़ चुके हम लोग कि जन्नत में जाने की कुंजी है नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? चांद आंटी, काइंडली रीड द हदीस। The worst thief among people is the one who steals from his prayer by not doing ruku and sujood properly. Yes. ये वाली हदीस हमें क्या बताती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरी चोरी कौन सी है? चोरी, थेफ्ट, वो जो नमाज के अंदर करे। और नमाज के अंदर किस चीज की चोरी हो सकती है? तो जो अपने रुकू और सजदे में चोरी करे, दैट मीन्स अपना रुकू और सजदा सही से अदा ना करे, उसमें कंप्लीट खुशू ना हो, या जल्दी जल्दी सजदे करके खड़े हो जा रहे हैं, या आधा सजदा करके खड़े हो जाते हैं। सो ऑल दैट इज नमाज में चोरी। It's okay, Shamim. I will share. Nishat, no problem. Ha. Kindly read this, Chand aunty. Benefits of Fajr prayer. Whoever offers the morning prayer, he is under the protection of Allah, the Mighty Sublime. Ibn Majah की. Alhamdulillah. Yes, Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने क्या फरमाया कि जो कोई फजर की नमाज पढ़े वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। यस, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। Next hadith. This is not a hadith, it is a quote. Kindly read this.
Salah is not an option, it is an obligation. Plan your day to work around the 5 daily prayers. जी, हमें चेक करना है कि क्या हम लोग दिन में खाना खाते हैं बार बार, 3 बार, 2 बार, 4 बार, isn't it? और बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में if they have 6 periods or 7 periods to attend, then they have to attend each period, isn't it? Compulsory. So salah, namaz is also not an option, but it is an obligation, and we have to plan our day accordingly, inshallah. और अहदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह about सलाह. हाँ, ये वाली पढ़िए चांद आंटी, सही मुस्लिम. जी. You should prostrate to Allah a great deal, for you will not perform one prostration to Allah, but Allah will raise you 1 degree in status thereby and erase 1 sin for you. Yes, alhamdulillah. See what is the benefit of salah. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई एक सजदा करता है अल्लाह के लिए, तो वो एक सजदा जब वो करता है, अल्लाह ताला उस एक सजदे से उसका एक दर्जा बढ़ा देते हैं और उसका एक गुनाह माफ कर देते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. सो हमारे रैंक्स, हमारा स्टेटस अल्लाह की नजर में क्या होता है? बड़ा होता है. अभी आ गया बाजमात नमाज के बारे में. काइंडली रीड. One who performs Isha prayer in congregation is as if he has performed Salat for half of the night. अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हम लोग आधी रात तक नमाज पढ़ सकते हैं? वेरी डिफिकल्ट ना. रमजान में तो बड़ी मुश्किल से हमसे हो पाती है तरावी. सो नाउ लुक एट दिस, व्हाट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जो कोई इशा की नमाज बाजमात अदा करे. अब बाजमात नमाज मर्दों के लिए, फॉर मेन इट इज कंपल्सरी, नॉट फॉर विमेन. सो जो इशा की नमाज बाजमात अदा करे वो ऐसा है जैसे कि उसने आधी रात इबादत में गुजारी, नमाज में गुजारी. अल्हम्दुलिल्लाह. Allah is so merciful, isn't it? Yes, one more. We are going to read few more ahadith and you can take the screenshots. Kindly read this, please. Allah's Messenger, Aap Sallallahu Alaihi Wasallam said, the prayer is congregation. Is 20, prayer in congregation is 27 times superior to the prayer offered by person alone. अल्हम्दुलिल्लाह. ये सही बुखारी में है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकेले नमाज पढ़ने से ज्यादा बाजमात नमाज पढ़ने का अजर 27 टाइम्स ज्यादा है. सुभान अल्लाह. Can all of you share this hadith with your family, your husband, your father, your brothers, your sons, your brothers? ये Yes. आज हम लोग इसको होमवर्क लेंगे, है ना. आज हमारी क्लास का ये होमवर्क होगा कि ये वाली हदीस, and everybody knows this. Your husband, your brothers, all the men know it. But then why do we want to miss out on so much ajr, so many nekis? See, एक अजर एक नमाज का, and comparative congregation में 27 times. सुभान अल्लाह. देखिए कयामत के दिन एक एक नेकी के लिए हम लोग तरस रहे होंगे, isn't it? तब ये सारी नेकियां हमको काम आएगी. Now this is so beautiful. ये वाली ठंडी ठंडी हदीस पढ़िए please. Prophet Muhammad, Aap Sallallahu Alaihi Wasallam said, if there was a river at the door of any one of you and he took a bath in it 5 times a day, would you notice any dirt on him? They said, not a trace of dirt would be left. The Prophet, peace be upon him, added, that is the example of the 5 prayers
with which Allah blots out, annuls evil deeds. यस अल्हम्दुलिल्लाह. सही अल बुखारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक नहर बह रही हो, एक नदी बह रही हो, और तुम उस नदी में, उस नहर में 5 दिन में 5 बार अगर नहाओ या गुस्ल करो, तो क्या तुम्हारे ऊपर कोई गंदगी, कोई मैल कुचैल रह जाएगा? 5 टाइम्स टेकिंग अ बाथ. तो साहबा इकराम ने कहा कि बिल्कुल, कैसे हो सकता है, कोई भी मैल नहीं बचेगा. तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक एग्जाम्पल है 5 वक्त की नमाज का, कि जब तुम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह तुम्हारे तमाम गुनाहों को, बुराइयों को मिटा देते हैं, जैसे नहाने से तुम्हारे ऊपर की मैल वॉश आउट हो जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह. Even this should be shared with the children, isn't it? I hope आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स ले रहे हो. अभी हम और हदीस भी पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह. हाँ, ये वाली भी पढ़िए प्लीज. Abu Huraira, may Allah be pleased with him, reported the Messenger of Allah, Aap sallallahu alaihi wasallam, said, if they knew the merits of Salat after nightfall, Isha, and the morning Fajr Salat, they would come to them even if they had to crawl to do so. Al-Bukhari and Muslim. सुभान अल्लाह. सही बुखारी एंड सही मुस्लिम में है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो लोग इशा और फजर की नमाज की अहमियत को समझते तो वो लोग अपने घुटनों के बल घसीटते घसीटते मस्जिद में पहुंच जाते. सुभान अल्लाह. हाउ मेनी ऑफ अस, हमें चेक करना है कि क्या हम लोग रेगुलर है अपनी इशा और फजर की नमाज में. अगर नहीं तो इंशाल्लाह आज से हम रेगुलर हो जाएंगे. और इसके बारे में एक और हदीस हमने क्या पढ़ी थी कि किसके लिए फजर और इशा की नमाज बहुत भारी होती है, किसको बहुत डिफिकल्ट लगती है? सुरैया? मुनाफिक की वजह। मुनाफिक को, है ना. तो फिर हमें अपने आप को चेक करना है. इंशाल्लाह अपनी कोई नमाज हम मिस नहीं करेंगे आज से, वरना ये मुनाफिकत होगी और इसका बहुत बड़ा गुनाह भी है. और कौन सी हदीस रह गई है शेयर करने की? लेट मी चेक. हाँ, ये अभी है ज़कात के बारे में. काइंडली रीड दिस चांद आंटी. Narrated by Aisha radiyallahu anha. Allah's apostle said, when a woman gives in charity some of the foodstuff which she has in her house without spoiling it, she will receive the reward for what she has spent, and her husband will receive the reward because of his earning, and the storekeeper will also have a reward similar to it. The reward of one will not decrease the reward of the others. Sahih Bukhari. अल्हम्दुलिल्लाह. सो अभी हम औरतों के लिए कितनी खुशखबरी है इसमें कि अगर अपने घर में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक औरत अगर अपने घर में से थोड़ा सा खाना अगर सदका कर दे, तो और वो ऐसा खाना हो जो अभी खराब नहीं हुआ है, खाने की हालत में है, तो उसको सदके का अजर भी मिलेगा, उसके हस्बैंड को भी मिलेगा, और वो स्टोर कीपर जहाँ से वो खरीद के लाई उसको भी मिलेगा. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड किसी का भी रिवॉर्ड कम नहीं होगा. तो क्या हम लोग रोज खाना बनाते हैं, एक चपाती थोड़ी एक्स्ट्रा बना ले, थोड़ा राइस एक्स्ट्रा, और हम वो क्या करें, सदका करें. ये सदका हमारे गुनाहों को मिटाएगा और कयामत के दिन हमको क्या होगा, अर्श के साए में खड़ा कर देगा इंशाल्लाह. सो मेनी हदीस. आपको पता है एक हदीस अगर हमारी जिंदगी में
اس کا اثر ہو جائے تو ہماری زندگی بدل جائے. Isn't it? Kindly read this, Chana aunty. Allah's messenger, Aap sallallahu alaihi wasallam, said, anyone whom Allah has given wealth, but he does not pay its zakat, then on the day of resurrection, his wealth will be presented to him in the shape of a bald-headed, poisonous male snake with 2 poisonous glands in its mouth, and it will encircle itself around his neck and bite him over his cheeks and say, I am your wealth, I am your treasure. Sahih Bukhari. Allahu Akbar. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई, जिस बंदे को अल्लाह ने माल दिया है और वो उस माल की ज़कात अदा न करे, तो क़यामत के दिन ये माल एक गंजे, डरावने, पॉइजनस स्नेक यानी सांप की शक्ल में आएगा और वो तुम्हारे गर्दन के इर्द गिर्द ऐसे लपेट कर तुम्हारे गालों पर तुमको बाइट करेगा यानी काटेगा, और वो सांप तुमसे कहेगा, आई एम योर वेल्थ, अना मालुक, मैं तुम्हारा माल हूँ, मैं तुम्हारा खजाना हूँ. अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह. और ये कहाँ होगा? ये जहन्नम में होगा. तो अल्लाह हम सबको इससे बचाए और हम सबको ज़कात अदा करने वाला बनाए, नमाज कायम करने वाला बनाए. आमीन. हाँ, अभी एक बहुत ही प्यारी हदीस है हम सब के लिए. हम सब यहाँ जमा होकर क्या करते हैं? किसका जिक्र करते हैं? हम अल्लाह का जिक्र करते हैं. यस. और किसकी किताब पढ़ रहे हैं? अल्लाह की. अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं. तो हम सब के लिए एक खुशखबरी है. देखिए ये वाली हदीस जो स्क्रीन पर है. चान आंटी, काइंडली रीड इट प्लीज. Allah says, I am just as my slave thinks I am. Example, I am able to do for him what he thinks I can do for him. And I am with him if he remembers me. If he remembers me in himself, I too remember him in myself. And if he remembers me in a group of people, I remember him in a group that is better than they. And if he comes one span nearer to me, I go 1 cubit nearer to him. And if he comes 1 cubit nearer to me, I go a distance of 2 outstretched arms nearer to him. And if he comes to me walking, I go to him running. Sahih Bukhari. Subhanallah. अल्हम्दुलिल्लाह. तो ये है कि ये है हदीस कुदसी. हदीस कुदसी वो होती है जो अल्लाह ताला डायरेक्टली बंदे से बात करते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही हूँ जैसे वो मेरा गुमान करता है. लाइक whatever you expect of Allah for yourself, you will get. I can do whatever he thinks. And I am with him if he remembers me. ये इतना अच्छा है. अभी आयत पढ़ेंगे कि जो मुझे याद करता है, अल्लाह ताला फरमाते मैं उसके साथ हूँ. If now this is very very important. If he remembers me in himself, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है. कौन फरमा रहा है ये अल्लाह ताला फरमा रहे आपसे और मुझसे कि अगर मेरा बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ. अल्लाह ताला, जस्ट इमेजिन. और अगर मेरा बंदा मुझे एक महफिल, एक मजलिस में याद करता है, जैसे हम लोग यहाँ एक मजलिस में बैठे ऑन जूम, तो मैं उसे इससे बेहतर मजलिस में याद करता हूँ. अ ग्रुप दैट इज बेटर देन दिस. और वो कौन सी मजलिस होती है? वो फरिश्तों की मजलिस है जिसमें अल्लाह ताला हमारा जिक्र करते हैं. जस्ट इमेजिन, हम क्या कर रहे हैं? इंसानों की एक मजलिस में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की किताब का जिक्र कर रहे हैं. अल्लाह सुब्हानहू ताला तब हमारा जिक्र फरिश्तों की मजलिस में कर रहे होते हैं. सुभान अल्लाह.
फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर मेरा बंदा एक बालिश यानी एक हाथ मेरे करीब आता है तो मैं क्या करता हूँ, एक क्यूबिट यानी उससे ज्यादा उसके करीब जाता हूँ। अगर वो एक क्यूबिट मेरे करीब आता है तो मैं एक लंबा हाथ उसके करीब जाता हूँ। अगर वो मेरे पास चल कर आता है तो मैं उसके पास दौड़ कर जाता हूँ। This is what I love. If he comes to me walking, I go to him running. सुभान अल्लाह। तो है ना ये खुशखबरी हम सब के लिए कि हम यहाँ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हमारा जिक्र वहाँ फरिश्तों की मजलिस में अल्लाह सुभान व तआला कर रहे हैं। यस सुरैया, ऐसी गुमशुदा चीजें होता है उसको करा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने लोग खुश हो गए आज? Anam is very happy. Yes, Anam. How are you feeling? Like so happy. मतलब actually this is one of my favorite hadiths that you put up today. तो मैं वैसे ही खुश हूँ. And like it just makes me very happy to know that Allah Ta'ala loves us so much, and थोड़ा भी हम लोग effort करते हैं तो Allah Ta'ala reciprocates it so much more. So much more. Alhamdulillah. Yes, माशाल्लाह. चले आगे बढ़ते हैं. तो ये थी नमाज और ज़कात और रुकू के बारे में जो हमने थोड़ी हदीसें पढ़े हैं. ये सब आपको शेयर करनी है इंशाल्लाह अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 44. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Over to Shamim for screen sharing. Allah Ta'ala फरमाते 44 में अभी there is a question. Now there is a question in the next ayat. अतअमुरूना क्या त तुम अमर क्या तुम हुक्म देते हो. शमीम काइंडली शेयर द स्क्रीन. अतअमुरूना अन्नास क्या तुम हुक्म देते हो इंसानों को. अन्नास इंसान. बिलबिर्री नेकी का. क्या तुम हुक्म देते हो इंसानों को नेकी का. वतनसौना और क्या तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपनी ही नफ्सों को. वअंतुम और हालांकि तुम ततलून अल किताब तुम तो तिलावत करते हो अल किताब अल्लाह के किताब की. अफला क्या फिर ला नहीं क्या फिर नहीं. ताकिलून तुम अकल रखते. आइन काफ लाम अकल के लिए आता है. इन इंग्लिश अल्लाह ताला आस्क्स अतअमुरून अन्नास do you order the people. This is a very serious question. Do you order the people to do righteous deeds and you forget yourselves while you recite Allah's book? Then don't you reason? Don't you use your brains? Don't you have knowledge? This is a question by Allah Ta'ala. Allah Ta'ala डांट रहे इस क्वेश्चन में. और डांट किसको पढ़ रही है. बनी इसराइल के स्कॉलर्स, बनी इसराइल के उलेमा. उनसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम स्कॉलर्स हो ना, तुम अल्लाह की किताब पढ़े हुए लोग हो, तो तुम तो क्या करते हो. यू आर सिंपली प्रीचिंग एंड नॉट प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ. तो लोगों को प्रीच करना आसान है, बहुत आसान है, isn't it? Like for me, how easy it is. I'm sitting here and just blah blah blah. Teaching is very easy. I'm telling you. आप एक बुक ले लो, उसको स्टडी करो, थोड़ा रिवाइज करो, फिर आप 1 घंटा बैठ के पढ़ाओ. तो पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन अमल प्रैक्टिस. सो अल्लाह ताला यही पूछ रहे स्कॉलर्स से कि तुम लोगों को तो बहुत अच्छे से पढ़ा देते हो और उनको हुक्म भी देते हो कि अल्लाह का ये हुक्म है, ये करो, ये नहीं करो. और जब खुद की बारी आती है
तब तुम क्या करते हो? Why don't you practice first? अल्लाहु अकबर। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था कि बनी इसराइल के जो स्कॉलर्स थे, जो प्रेजेंट थे मदीना में, वो लोग ईमान नहीं ला रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और हालांकि अल्लाह ताला ने क्वेश्चन भी किया, व अंतुम ततलूनल किताब, एंड you read your book, you're reading Allah's book, and in spite of that, how can you not practice yourself? क्या क्या नहीं कर रहे थे वो प्रैक्टिस? कि उनकी किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां मौजूद थी। अभी हमने सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का पढ़े ना वाकया, कि उनको पता था कि क्या निशानियां हैं, तो उन्होंने फाइंड आउट किया, isn't it? और जब उनको सच्ची बात पता चल गई, तो उनके दिल में जब कंफर्मेशन हो गया, दिल और दिमाग दोनों को कंफर्मेशन मिल गया, तो वो जल्दी से ईमान ले आए कि दिस इज द ट्रुथ। तो तुम तो स्कॉलर्स हो, पढ़े लिखे लोग हो, तुमको सिर्फ प्रीचिंग आती है। जब खुद की बारी आई कि तुम खुद अमल करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानो, उन पर ईमान लाओ, तो तुम नहीं करते। अफला ताकिलून, क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते? क्या तुम अकल नहीं रखते? डोंट यू हैव ब्रेन्स? ये क्वेश्चन अल्लाह ताला किससे कर रहे हैं शमीम? बनी इसराइल के उलमा से। हाँ, उलेमा मीन्स स्कॉलर्स, राइट। तो स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो बुक पढ़ते हैं, isn't it? अल्लाह की बुक पढ़ रहे हैं वो, लेकिन उनके अमल उससे, उनके अमल से वो लोग खाली है ना? नॉलेजेबल पीपल बट नॉट इग्नोरेंट। अभी अकल के बारे में बहुत अच्छा मैंने सुना नौमान अली खान, ब्रदर नौमान अली खान से। ही सेड कि अकल जो वर्ड है ना, ये अरबिक वर्ड है, एंड दे यूज दिस वर्ड फॉर दैट रोप दैट दे टाई अराउंड देयर हेड। आपने देखा होगा कि अरबी आदमी जो होता है, उनके सर पे एक कपड़ा लगा होता है, उसके ऊपर एक रस्सी बांधते हैं वो लोग, है ना? तो एक्चुअली वो रस्सी किस काम की होती है पता है? वो इसलिए होती है कि जब भी वो ऊंट पर, कैमल पर जाए और उनको अपना कैमल कहीं पार्क करना है, जैसे हम अपनी कार पार्क करते हैं, तो कैमल को पार्क नहीं कर सकते ना, उसको तो रस्सी से बांधना पड़ेगा, वह चला जाएगा कहीं भी। सो दे keep that rope upon their head, then they remove that rope and tie their camel with it. This rope is called aqal, to tie, okay, बांधना। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया, ब्रदर नौमान अली खान ने, कि अकल उसको कहते हैं जिसमें अमल हो सेल्फ कंट्रोल के साथ। सेल्फ कंट्रोल, वन who uses his intellect but is not an emotional fool. तो अकल is a very good balance of brain plus heart। लिख लीजिए आप, अकल is a very good combination of brain and heart। हमारा दिल और दिमाग दोनों का एक बहुत अच्छा बैलेंस है, तो उसको अकल कहते हैं। अगर ज्यादा दिल की तरफ बढ़ेंगे तो इमोशनल हो जाएंगे, और इमोशनल होके कोई गलत डिसीजंस ले सकते हैं। और सिर्फ ब्रेन यूज करेंगे तो फिर आप हार्टलेस होके, आपके दिल में रहम नहीं होगा किसी के लिए। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस, तब वो अकल का इस्तेमाल होता है। अभी वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स, क्या हमारे पास दिल है? हाँ, सबके पास दिल है। दिमाग है? चलो आप सबके बिहाफ पे मैं बोल देती हूँ कि सबके पास दिमाग भी है। वी हैव हार्ट एज वेल एज ब्रेन, लेकिन क्या हम यूज करते हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। अगर हम यूज करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन अगर मुझ पर आता है कि क्या मैं लोगों को प्रीच करती हूँ और खुद अमल नहीं करती, तो इसके लिए एक बहुत ही डरावनी हदीस है, और ये हदीस पढ़कर मुझे हमेशा बहुत डर लगती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ وہ लोग جو दूसरों को तो नेकी का हुक्म देते हैं और खुद उस पे अमल नहीं करते वो जहन्नम की आग में होंगे, और वो जिनको अमल करने का हुक्म देते थे वो उनसे कहेंगे कि अरे आप तो हमको सिखाते थे, आप जहन्नम में कैसे? तो वो कहेंगे कि मैं सिर्फ लोगों को सिखा देता था और खुद अमल नहीं करता था। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इल्म पर अमल करना, how important it is. This ayat teaches us about it. Allahu Akbar. Going to the next ayat, that is 45. 45 ayat is one of my favorite ayats. Shamim, kindly share the screen. वस्तईनु, वो और, इस्तईनु और तुम मदद हासिल कर लो, और तुम मदद ले लो। ये कितना अच्छा है ना, अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे इसमें, तुम मदद ले लो। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हम लोग मदद मांगते रहते हैं, अरे भाई मदद करो मदद करो मदद करो। अल्लाह ताला फरमाते मदद ले लो, मदद मांगो। किससे? किससे मांगो? बिस्सब्री, साथ सबर के। बिस्सब्री, सब्र समझते, पेशेंस। वस्सलात, और नमाज के साथ। दो चीजों के साथ मदद मांगो, एक है सब्र और दूसरा नमाज। अभी नमाज का जिक्र हुआ, अस्सलात। व इन्नहा, और बेशक ये, हा किसके लिए आया है? बेशक ये मदद मांगना, लकबीरतुन, बहुत बड़ी है, भारी चीज है, बहुत डिफिकल्ट लगती है। इल्ला, सिवाय, अलल खाशिईन, सिवाय खुशू करने वालों के। खुशू करने वाले जो है, अल्लाह से डरने वाले, हम्बल लोग, उनके लिए आसान है, उसके अलावा सबके लिए मुश्किल है। क्या? ये मदद हासिल करना सबर और नमाज के साथ। We'll do it in English inshallah. Wasta'inu, and seek help. Bisabri, through patience, wassalati, and through prayer. Wa innaha, and indeed it is, lakabiratun, very difficult. Illa, except, alal khashi'in, except upon the humble ones. This word khashi'in, we will study it in the next ayat. Who are the khashi'in people? In this ayat, what are we going to study? कि अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे हैं, बनी इसराइल से भी फरमा रहे और हमसे भी फरमा रहे हैं कि ये जो दीन का रास्ता है, इस्लाम का रास्ता, अभी लाइक इस्लाम, सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल किए, तो was it easy for him? For all those who accepted Islam. So it is not easy. People, this world is always going to oppose you, and there are going to be many trials and tests, है ना? और opposition भी आएगा, objections भी आएगी। तो क्या है कि तुमको क्या करना होगा? मदद मांगनी होगी। लेकिन मदद मांगने का तरीका अल्लाह का क्या है? ये नहीं कि अल्लाह प्लीज हेल्प मी। यू विल हैव टू बी पेशेंट फर्स्ट, यानी पहले टेस्ट होगा, आपको लिखनी होगी ये सब स्टेप्स कि अल्लाह की मदद कैसे आती है। नंबर 1, पहले अल्लाह की तरफ से टेस्ट आती, टेस्ट, आजमाइश। फिर अल्लाह ताला चेक करते हैं कि उस आजमाइश में, उस टेस्ट में मेरा बंदा सब्र करता है या नहीं। अगर वो सब्र करता है और वो नमाज भी कायम करता है, ये नहीं कि मुश्किल आई अब क्या सिर्फ रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं
और नमाज भी छोड़ दी, कुरान भी छोड़ दिया कि अल्लाह मेरे ऊपर क्यों इतनी मुश्किल आती है, इतनी नमाजें मैं पढ़ती थी फिर भी मुश्किल आ रही है, तो अभी नमाज पढ़ के क्या फायदा। नो नो नो, बल्कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुश्किल आती वो सबसे पहले क्या करते बताओ, पता है किसी को? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई मुश्किल आती, कोई परेशानी आती, वो सबसे पहले क्या करते थे? यस आयशा, यस आयशा बोलिए। सुरैया? नमाज के लिए दौड़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एग्जैक्टली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुश्किल में सबसे पहले नमाज से अल्लाह का सहारा लेते, नमाज में अल्लाह से मदद मांगते। तो यहाँ पर एक मोमिन को दो हथियार दे दिए गए हैं कि जब भी कोई मुश्किल आए, नंबर 1 सब्र करना है, नंबर 2 नमाज, और नमाज के अंदर ही सब्र भी इंक्लूडेड है। सब्र क्या है? सब्र के बारे में एक हदीस लिख लीजिए सब्र के बारे में, इतनी ब्यूटीफुल हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे को सब्र से बढ़कर ज्यादा भलाई नहीं दी गई है। किसी बंदे को सब्र से ज्यादा भलाई नहीं दी गई है, यानी अगर किसी के अंदर सब्र है तो वो उसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, वो अल्लाह की तरफ से उस पर एक भलाई है, नेमत है। नाउ व्हाट इज सब्र? सब्र इज पेशेंस। कैसा पेशेंस? आइडियल सब्र ये है कि नो नेगेटिव रिएक्शन। मुश्किल आई पर हम लोग क्या करते हैं, कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है तो इतना ज्यादा उसका शोर करते हैं, रोते हैं, कंप्लेन करते हैं, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, और क्या फायदा होता है? कुछ भी नहीं। और फिर एंड में, एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी से अब मैं क्या करूं, मुझे तो सब्र करना ही पड़ेगा। सो दैट इज नॉट सब्र। सब्र कब होता है? सब्र कब होता है सुरैया? पहली चोट पर, लिख लीजिए। हाँ, सब्र होता है पहली चोट पर, यानी जब पहले तकलीफ पहुंची उसी वक्त सब्र। एक और लिख लीजिए, नो नेगेटिव रिएक्शन। व्हाट इज दिस नो नेगेटिव रिएक्शन? का मतलब है कि शिकायत नहीं करना है, यहाँ तक कि चेहरे पे भी नजर ना आए। ये वेरी डिफिकल्ट है ना, बहुत मुश्किल है ये काम। लेकिन सब्र के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं? इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। क्या मतलब है इसका? कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कयामत के दिन सबसे पहले फरिश्ता आवाज लगाएगा, कहाँ है सब्र करने वाले, कहाँ है सब्र करने वाले? और फिर सब्र करने वालों को सबसे पहले जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, कैन वी इमेजिन? तो ये हमारा सब्र हमें जन्नत में ले जाएगा और बहुत बड़े दर्जात है इसके लिए। एंड सेकंड, हमने अभी नमाज का सहारा देख लिए। हम क्या समझते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि नमाज जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए है और इबादत है। लेकिन इस आयत में हमने क्या सीखा? कि नमाज अल्लाह से मदद मांगने का जरिया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सब्र करते हैं। व इय्याका नस्तईन में यही वर्ड आया, इस्ताईनु नस्तईन, कि अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। तो नमाज अल्लाह से मदद मांगने का बेहतरीन जरिया है। जो चाहिए
किसी और को नहीं, अल्लाह से मांगो. अगर अल्लाह से मांगते हैं तो फायदा क्या होता है? अल्लाह ताला हमें वो फ्री में देते हैं, अल्लाह ताला देकर खुश होते हैं, और वो चीज हमें अल्लाह को क्या रिटर्न करनी होती है, वापस लौटानी होती है ना. अगर मैं अपनी फ्रेंड शाजिया से मांगू कि शाजिया आई नीड 10 लाख रुपीस, मैं तुमको वापस लौटा दूंगी 1 साल में, और अगर मैं नहीं लौटा पाई तो शाजिया ढिंडोरा तो पीट देगी कि मैंने अपनी फ्रेंड को पैसे दिए और उसने नहीं लौटाई, तो मुझे तो उसको लौटाना ही पड़ेगा और मेरी इज्जत भी खतरे में है. लेकिन जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी उस सीक्रेट को किसी पर भी जाहिर नहीं. इट इज ओनली बिटवीन मी एंड माय अल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. We conclude at ayat number 45 and stop the